السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے آج 29 اپریل کو لال بہادر اسٹیڈیم میں دعوت افطار کا کیا گیا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہر سال مسلمانوں کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے طور پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے حیدرآباد کی پرانے شہر کے کئی علاقوں میں فوڈ زون بنائے گئے جو کافی مقبول ہو رہے۔ زیادہ تر فوڈ کورٹس چار مینار اور اس کے اطراف کے علاقوں میں لگائے گئے جو اس سال رمضان میں عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ موسم گرما میں اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافہ اور کورونا وائرس کی وبا کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ضلع کلکٹرز، DEOs، TSRTC، ٹرانسکو اور متعلقہ دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں انٹرمیڈیٹ، SSC اور ٹیٹ امتحانات کے انعقاد میں حد درجے محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ اگلے ماہ کی 6 سے 24 تک امتحانات انٹرمیڈیٹ ہوں گے۔ اسی طرح 10ویں جماعت کے امتحانات 23 سے 28 مئی، ٹیٹ اہلیت، ٹیچر اہلیت کا امتحان TET 12 جون کو ہوگا منعقد۔ تلنگانہ میں زیر تعمیر سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کا احاطہ میں چرچ کا سنگ بنیاد میدک چرچ کے پشپ AC سلومن نے رکھا۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ RTC باجی ریڈی گووردھن اور MD RTC VC سجنار کے ساتھ RTC ہاسپٹل تارناکہ کے احاطے میں نرسنگ کالج کی نئی عمارت کا رکھا سنگ بنیاد۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں گزشتہ روز شب قدر کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام اور رات بھر جاگتے ہوئے مساجد و مکانوں میں خصوصی عبادتیں، ذکر و اذکار اور دعائیں کی گئیں۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر جلسہ یوم القرآن مکہ مسجد میں کیا گیا منعقد، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا خطاب۔ مصلیان کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی گجرات کی عائشہ کے شوہر عارف کو گجرات کی سیشن کورٹ نے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT مدراس میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ روز 27 نئے معاملے کے ساتھ یہ تعداد 171 تک پہنچ گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 3,377 نئے مریض آئے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کم ہو کر 17,801 ہو گئی ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا، تشدد سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا، آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام فرقوں کو ایک جگہ لا کر انسانیت کا تحفظ کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے آخری دہے میں معتمرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے حکام نے روزہ مقدس کی زیارت کو ایک ہفتے تک کے لیے معطل کر دیا۔ 3 مئی تک معتمرین کو روزہ اقدس کی زیارت کی اجازت نہیں رہے گی۔ جاریہ سال کا پہلا سورج گرہن 30 اپریل کو۔ محکمہ موسمیات کا کہنا، یہ سورج گرہن جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا اور بحر پیسفک و اٹلانٹک میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ جزوی گرہن 2022 کا پہلا سورج گرہن۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سورج گرہن ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز۔ اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज 29 अप्रैल को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से हर साल मुसलमानों के साथ जज्बे खैर सुगाली के तौर पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुस्लिम मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा दीगर तबकात के नुमाइंदे और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री नवाज यादव ने आला ओहदेदारों के साथ लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया था। लाल बहादुर स्टेडियम में खुसूसी मेहमानों के अलावा आम विजिटर्स के लिए अलग गोशे बनाए गए थे और तमाम के लिए इफ्तार और नमाज बाजमात एहतमाम के बाद ताम का इंतजाम भी किया गया। कांग्रेस पार्टी और बाज मुस्लिम तंजीमों की जानिब से दावत इफ्तार के बाइकॉट की अपील के पेश नजर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए थे। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी नवाज यादव, साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और TRS के अक़लियती क़ायदीन इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस के ओहदेदारों ने हिफाजती इंतजामात किए थे, जबकि अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के लिए मखसूस गोशे के क़याम और स्टेज के इंतजामात किए थे। रियासती वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला ने गरीब मुसलमानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए रियासत की 900 मसाजिद में दावत इफ्तार और रमजान गिफ्ट की तक़सीम का इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम मज़ाहिब के ईद और त्यौहार मनाए जाते हैं। हर साल की तरह उलमा और अवामी नुमाइंदे दावत इफ्तार में शरीक रहे। माह रमजान की मुनासिबत से हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में फूड जोन बनाए गए हैं, जो काफी मकबूल हो रहे। ज्यादातर फूड कोर्ट्स चार मीनार और उसके अतराफ के इलाकों में लगाए गए हैं, जो इस साल रमजान में अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। अब शहर हैदराबाद में रमजान में रात के ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी के रुझान में काफी इजाफा हो गया है। चार मीनार के इलाके को पैदल सवारों के लिए महदूद कर देने से भी अवाम आसानी के साथ रमजान में इन ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी में लगे हुए हैं। सड़क पर ही डोसे की दुकानात लगाई गई हैं। अगरचे के डोसा हैदराबाद की रिवायत नहीं था, ताहम गुज़िश्ता कुछ दिनों से जनूबी हिंद का यह ग़िज़ाई आइटम हैदराबादियों के ग़िज़ा की रिवायत में तब्दील हो गया है और रमजान में रात के औक़ात में इडली, डोसा, वड़ा, सांबर का रुझान भी तेजी से फरोग़ पाता जा रहा। इलावा से हैदराबाद के इन फूड कोर्ट्स और फूड जोन में जहाँ हैदराबादी पत्थर का गोश्त, दही बड़े, हलीम, लुक़मी, इडली, डोसा और दीगर अशिया फरोख्त हो रही, वहीं कबाब, मरक और दीगर खाने की अशिया भी फरोख्त की जा रही। ये अशिया अब जायके के शौकीन अफराद पसंद करने लगे हैं। चार मीनार के तरफ शॉपिंग के बाद फूड कोर्ट्स में आवाम का हुजूम उमड़ पड़ रहा और ये कारोबार चल पड़ा है। इफ्तार के बाद कई अक़साम की लजीज स्ट्रीट फूड्स जायके के शौकीन अफराद का इस्तकबाल कर रहे। इस महीने में खरीद व फरोख्त के साथ साथ खाने पीने की अशिया की जानिब आवाम का रुझान बढ़ गया है। हलीम, पत्थर का गोश्त, मरक, मुख्तलिफ किस्म के कबाब, इडली, डोसा लोग कतारों में ठहर कर खा रहे हैं। पत्थर का गोश्त, मरग, इडली, डोसा की इस कदर मकबूलियत हो गई है कि होटलों, टिफिन सेंटर्स, बंडियों और स्टॉल्स के सामने एक हुजूम देखा जा रहा। इन ग़िज़ाओं को खरीदने वालों ने कहा है कि रात के औक़ात में रमजान में खाने पीने की अशिया की खरीदारी नई बात हो गई है। इसमें उनको मजा आ रहा, क्योंकि शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने की अशिया से भी वो लुत्फ अंदोज हो रहे। साथ ही अरबियन फूड, तंदूरी कबाब, मरग मलाई पाया, बादामी कबाब, मरग मलाई कबाब, रेशमी कबाब, हरियाली कबाब को लोग ज्यादा पसंद कर रहे। पुराने शहर के हुसैनी आलम में मटन मरग, पत्थर का गोश्त, मटन कबाब, चिकन स्टिक्स की काफी धूम मची हुई है, जो इफ्तार से सहर तक दस्तयाब रहते हैं। शहर में खुसूसी डिश रोज मटन और मुगलाई मटन भी फरोख्त किए जा रहे। पत्थर का गोश्त को अवाम में मकबूलियत हासिल हो रही। मुख्तलिफ फूड कोर्ट्स में हलीम, बिरयानी, मुख्तलिफ किस्म के कबाब, आइसक्रीम, हमा अक़साम के मीठे भी अवाम के लिए दस्तयाब हैं, जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे। मौसमी गर्मा में अज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफा और कोरोना वायरस की वबा के खतरे को मद्देनजर रखते हुए रियासती वज़ीर तालीमात पी सबिता रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स, DEOs, TSRTC, ट्रांसको और मुतल्लिका दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में इंटरमीडिएट, SSC और टेट इम्तहानात के इनकाद में हद दर्जे मोहतात रहें। अज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफे के असरात से तलबा को महफूज रखने और कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मुमकिन इक़दामात
इंतज़ामात करना चाहिए। वो SSC, इंटरमीडिएट और टेट इम्तिहानात के इंतज़ामात के जायज़े इजलास से खिताब कर रही थी। इस इजलास में सेक्रेटरी तालीमात संदीप कुमार सुल्तानिया, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवासेना और सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड सैयद उमर जलील और दीगर ओहदेदार शरीक थे। बादशाह सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स, DEOs, RTC, ट्रांसको ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ तबादला ख्याल किया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज 6 मई से होगा, जबकि SSC इम्तिहानात 23 से 28 मई मुनक़िद होंगे। टेट इम्तिहान 12 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं इंटरमीडिएट और टेट के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया और जिले कलेक्टर्स, DEOs, RTC, ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देवासेना और इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तिहानात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम ने हुक्काम को हिदायत दी कि धूप की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से इम्तिहानी मराकज़ में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अगले माह की 6 से 24 तक होंगे। इस तरह 10वीं जमात के इम्तिहानात 23 से 28 मई तक होंगे। टीचर अहलियत का इम्तिहान TET 12 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना में ज़ेर तामीर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के अहाते में चर्च का संग बुनियाद मेदक चर्च के बिशप AC सुलोमन ने रखा। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी दुआ की। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम तेजी रफ्तारी के साथ जारी है, जहां पर मस्जिद, मंदिर के साथ साथ चर्च भी तामीर किया जाने वाला है। 1.5 करोड़ रुपए के सरफे से इस चर्च की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में नए सेक्रेटेरिएट के तामीराती काम का मुआयना किया था। 6 मंजिला इमारत तकरीबन 9 लाख मुरब्बा फुट के रकबे पर तामीर की जा रही। तकरीबन 70% काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। सेक्रेटेरिएट के सामने एलिवेशन का काम जोरों पर है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों और इंजीनियर्स को सेक्रेटेरिएट का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने सदानशीन तेलंगाना स्टेट RTC बाची रेड्डी गोवर्धन रेड्डी और MD RTC VC सज्जनार के साथ RTC हॉस्पिटल तारनाका के अहाते में नर्सिंग कॉलेज की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। ताहम RTC ने नर्सिंग कॉलेज के लिए हॉस्पिटल के अहाते में मुतबादिल नज़्म किया है और आर्जी इमारत में कॉलेज की सरगर्मियाँ शुरू की जा चुकी हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने पहले ही कॉलेज की मंजूरी दी है। इस कॉलेज में 50 निशस्तों पर दाखिले दिए जाएंगे, जिनमें 30 निशस्तें कन्वेनर कोटा और बाकी 20 निशस्तें मैनेजमेंट कोटे के तहत मुख्तस रहेंगी। इसके साथ वजीर ट्रांसपोर्ट ने ICU के 20 बेड्स, किडनी सेंटर के 4 बिस्तर, डायलिसिस सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट के अलावा कैंटीन का भी इफ्तिताह किया। RTC हॉस्पिटल में दीगर मरीजों, RTC मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान का OPD में कम फीस पर इलाज शुरू किया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रोज शब कदर का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया और रात भर जागते हुए मसाजिद व मकानों में खुसूसी इबादतें, जिक्र व अस्कार और दुआएं की गईं। शब कदर का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहां नमाज इशा और तरावी में हजारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। शहर की कई मसाजिद और मुकामात पर जलसे हाय शब कदर मुनक्किद किया गया, जिसको उलमा इकराम ने खिताब करते हुए फजाइल शब कदर बयान किए और कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होते
ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کی تلقین کی۔ جامع مسجد چوک میں مولانا محمد حسام الدین حسامی جعفر پاشا نے جلسے شب قدر سے خطاب کرتے ہوئے نزول قرآن کی فضیلات پر روشنی ڈالی۔ کل ہند بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام بعد نماز عشاء قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ایم اے مجیب ایڈوکیٹ کی صدارت میں جلسے شب قدر منعقد ہوا۔ جلسے کو ممتاز عالم دین مولانا محمد شمیم الزما قادری کلکتہ، مولانا شاہ محمد احمد نقشبندی امیر تحریک صدائے اسلام نے عامت المسلمین کو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ چنچل گڑا گراؤنڈ پر رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام لیلۃ القدر و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس منعقد کی گئی۔ علامہ سلمان ازہری، مفتی لیاقت حسین قادری رضوی، علامہ قاری محمد ذکر اللہ مکی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ غوث و خواجہ رضا ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے بھی مشیرآباد میں لیلۃ القدر کانفرنس منعقد کی گئی، جس کو علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے شب قدر کے فضائل اور اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ مولانا حفیظ رضوان قریشی دوپہر 1:15 پر مسجد میں نماز کی امامت کیے۔ حیدرآباد میں چار مینار کے قریب واقع تاریخی مکہ مسجد کے قریب ایک پرہیزگار ماحول دیکھا گیا، کیونکہ یہاں ہزاروں لوگ جمعۃ الوداع رمضان کی نماز ظہر کے آخری جمعے میں شرکت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ریاست میں کووڈ پابندیوں کو دیکھتے ہوئے روایتی لباس میں ملبوس تمام عمر کے لوگوں کو تینوں داخلی دروازوں سے مکہ مسجد کے وسیع احاطے میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ دو چار مینار یونانی اسپتال کی طرف اور دوسرا لاڑ بازار چوڑی بازار کی طرف سے، اور مکہ مسجد میں تقریباً 10,000 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جبکہ مزید 15,000 مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے مکہ مسجد کو قالینوں سے سجا کر اور عوام کو گرمی سے بچانے کے لیے خیمے لگا کر انتظامات کیے تھے۔ چند اچھے سامریوں نے نیک کام کے مقاصد کے لیے اپنے طور پر خیمے بھی لگائے تھے۔ ایک مشق کے طور پر لوگ جمعۃ الوداع کے دن سب سے بڑی مسجد میں نماز میں شرکت کرتے ہیں، اور حیدرآباد میں شہر کے لوگ مکہ مسجد جاتے ہیں۔ نیز دور دراز کے اضلاع سے مسلمان مکہ مسجد میں آخری جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ سکندرآباد میں لوگ سکندرآباد کی جامع مسجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں ایک بار پھر تقریباً 12,000 لوگ حاضر ہوئے۔ نماز کا وقت قریب آتے ہی کئی نوجوان عطر کی بوتل لیے مسجد کی طرف جانے والے راستوں پر کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے ہاتھ پر رگڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کی طرف جا رہے ہیں، کچھ جگہوں پر کچھ رضاکار گروپوں نے واٹر کیمپ لگا کر وضو کا بھی انتظام کیا تھا۔ مولانا حفیظ رضوان قریشی نے دوپہر 1:15 پر مسجد میں نماز کی امامت کی۔ درِ اثنا ٹریفک پولیس نے نماز میں شرکت کرنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں چار مینار بس اسٹینڈ، خلوت اولڈ پینشن پیمنٹ آفس، خلوت پلے گراؤنڈ، علیجہ کوٹلہ روڈ پر واقع مفید الانام اسکول، اعتبار چوک کے گلزار فنکشن ہال اور چار مینار کے پاس رکھیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے آج 29 اپریل کو لال بہادر اسٹیڈیم میں دعوت افطار کا کیا گیا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہر سال مسلمانوں کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے طور پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے حیدرآباد کی پرانے شہر کے کئی علاقوں میں فوڈ زون بنائے گئے جو کافی مقبول ہو رہے۔ زیادہ تر فوڈ کورٹس چار مینار اور اس کے اطراف کے علاقوں میں لگائے گئے جو اس سال رمضان میں عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔
मौसम गर्मा में अज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफा और कोरोना वायरस की वबा के खतरे को मद्देनजर रखते हुए रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स, DEOs, TSRTC, ट्रांसको और मुतल्लिका दीगर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में इंटरमीडिएट, SSC और टेट इम्तिहानात की निकात में हर दर्जे मोहतात रहें। इसके अलावा अगले माह की 6 से 24 तक इम्तिहानात इंटरमीडिएट होंगे। इसी तरह 10वीं जमात के इम्तिहानात 23 से 28 मई, टेट अहलियत, टीचर अहलियत का इम्तिहान TET 12 जून को होगा मुनक्किद। तेलंगाना में ज़ेर तामीर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का अहाता में चर्च का संग बुनियाद मेदक चर्च के पुष्प AC सलोमन ने रखा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट RTC बाजीरेड्डी गोवर्धन और MD RTC VC सज्जनार के साथ RTC हॉस्पिटल तारनाका के अहाते में नर्सिंग कॉलेज की नई इमारत का रखा संग बुनियाद। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रोज शब कदर का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम और रात भर जागते हुए मसाजिद व मकानों में खुसूसी इबादतें, जिक्र व अस्कार और दुआएं की गई। आज जुमअतुल विदा के मौके पर जलसा यौमुल कुरान मक्का मस्जिद में किया गया मुनक्किद, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया खिताब। मुसल्लियान की कसीर तादाद ने की शिरकत। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली गुजरात की आयशा के शौहर आरिफ को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में कोविड से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता रोज 27 नए मामले के साथ ये तादाद 171 तक पहुँच गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,377 नए मरीज आए सामने। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 17,801 हो गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा, तशद्दुद से किसी को कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा, आज हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम फिरकों को एक जगह लाकर इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मदीना मुनव्वरा में रमजानुल मुबारक के आखिरी दहे में मोतमरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए हुकाम ने रोज़े मुक़द्दस की ज़ियारत को एक हफ्ते तक के लिए मुअत्तल कर दिया। 3 मई तक मोतमरीन को रोज़े अक़दस की ज़ियारत की इजाज़त नहीं रहेगी। जारिया साल का पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को। महकमे मौसमियात का कहना, ये सूरज ग्रहण जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका और बहरे पैसिफिक व अटलांटिक में देखा जा सकेगा। ये जुज़वी ग्रहण 2022 का पहला सूरज ग्रहण। साइंसदानों के मुताबिक ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।